आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। गोंदिया नगरी की समस्त शालाओं में शीत ऋतु में वार्षिक स्नेह सम्मेलन का जोर होता है। इसी श्रृंखला में लिटिल वुड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हरिकाशी नगर गोंदिया में वार्षिक स्नेह सम्मेलन एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। ये स्कूल नगर की प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है, जहां लगभग 600 छात्र अध्ययनरत हैं। 12वीं कक्षा तक स्कूल को मान्यता प्राप्त है। स्कूल के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में संस्थापक आशीष अग्रवाल, डॉक्टर आनंद देशपांडे, शिक्षक गुरु गुरबख्श सिंह छाबड़ा व स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर अनिल दरियानी सर वार्षिक स्नेह सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में विशेष तौर पर उपस्थित थे। स्नेह सम्मेलन का विधिवत दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। वहीं सभी मान्यवरों ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना कर शाला को प्रगति पथ पर ले जाने की बात कही। वार्षिक स्नेह सम्मेलन में केजी से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने अपनी कला के माध्यम से आए हुए सभी श्रोताओं और दर्शकों का मन मोह लिया। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुसार भगवान श्री गणेश और मां सरस्वती की आराधना, वंदना और नृत्य प्रस्तुति कर वार्षिक स्नेह सम्मेलन का विधिवत श्री गणेश किया गया। श्रृंखलाबद्ध रूप से बड़े और छोटे बच्चों के बीच सामंजस्य स्थापित कर एक से बढ़कर एक नृत्य बच्चों ने प्रस्तुत किया। विशेष आकर्षण यह था कि विद्यार्थियों के शिक्षक, शिक्षिकाओं और बच्चों की मेहनत वार्षिक सम्मेलन के इस कार्यक्रम में दिखाई दे रही थी। हेमलता मैम, थैंक यू वेरी मच। Suratia ma'am, thank you very much. And I'm really very happy to have the chief guest and guest of honor or management members. It's a time of great joy for me to share whatever the achievements we have and what achievements we are going to, what vision our school, our management has. So someone has rightly said, if you think you can, you can. And if you think you can't, you are right. It means God helps those who help themselves. I, Dr. Anil Kumar N. Daryani, Principal of Little Woods International School, Gondia, on behalf of the management, Mr. Dheeraj Agrawal, President, Gondia Homeopathic Education Society, Gondia, Mr. Ashish Agrawal, Secretary, Mrs. Rekha Devi Agrawal, Director, Mrs. Reshma Agrawal, Directress, and we also have with us Veena Didi from Brahma Kumaris. So I welcome you all in the festive event Razmatas, the celebration of festivals. Ladies and gentlemen, I am really very grateful to you all. On the dais is all the dignitaries on the dais and off the dais, and dear parents for taking out your time and witnessing this mega event, which is just going to display the talents of your own children. How swiftly and how fast time passes by, nobody knows. But this is the 13th annual day event, annual function we are going to celebrate here. The journey of 16 years is already completed successfully. It is only because of our parents. The credit goes to you because the trust of our dear parents upon school is the strength and has always been the strength of the team LWIS. I am presenting an annual report on the school happenings for the academic session 2024 and 25. We grew from 2 students and from 2 teachers. Right now we have 600 plus students and 50 plus teachers. It is a great achievement for us, but the number of students and the teaching staff and the non-teaching staff has always been growing here, and I am really feeling very proud of being the member of such a great and such a good organization. And you must have the knowledge, and I hope you know that our school has grade up to 12 art, commerce and science. And apart from this, I would like to share one thing with you. Our school gave 100% result for the standard 10, grade 10.
last year and also 2 years ago. Would like to call our honorable guest Dr. Anand Deshpande on the dais to inspire our children with his invaluable words. वंदनीय माता सरस्वती के चरणों में सबसे पहले नमन करता हूं। मंच पर बैठे हुए सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो इस विद्यालय से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे आशीष जी और सारे लोग, रायपुर से पधारे हुए गुरुबख्श जी, इस विद्यालय के प्रिंसिपल और सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं, बंधु और भगिनी, सामने रंग बिरंगी भूषा किए हुए छोटे छोटे सुंदर ऐसे विद्यार्थी और इनके साथ में आए हुए माता पिता, शायद किसी की दीदी आई होगी, बड़े भैया आए होंगे, तो इन बच्चों के पालक, बंधु और भगिनी। अभी थोड़ी देर पश्चात यहाँ जब मैं आया तो आशीष जी ने कुछ बताया कि क्या कुछ बात करनी है, परंतु आप सभी लोग देख रहे हो ये जो परफॉर्मेंस करने के लिए बच्चों के अलग अलग ग्रुप्स तैयार है, ये अपने आप में इतने व्यस्त है कि उनसे क्या कहना। वो तो अपने काम में लग चुके हैं, उनका जो भी परफॉर्मेंस है वो कब आएगा, हमें परफॉर्म करने कब मिलेगा, इसकी प्रतीक्षा में वे है। तो मैं थोड़ी बातें पालक, बंधु और भगिनी है आपसे शेयर करना चाहूंगा। हम सभी बोलते हैं कि भारत देश एक महान देश है, इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति महान रही है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने हजारों सालों पहले ही बहुत सारी प्रगति कर चुकी थी। हम यहाँ तक जानते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य का शोध लगाया, उसके आगे हम बढ़ नहीं पाते। हमारे बच्चों को इस देश का इतिहास यदि पता नहीं होगा तो देश के लिए जो समाज हमारे देश में रहता है उसके लिए एक आत्मगौरव की जो भावना होती है, ये भावना पनप नहीं सकती है, निर्माण नहीं हो सकती। चाहे स्कूल कोई भी हो, पढ़ने वाले बच्चे शायद किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले हो, किसी भी स्तर पर पढ़ने वाले हो, देश का जो इतिहास है खास करके ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारे बच्चों को बताना, ये जैसे हम शिक्षकों का दायित्व है, ठीक उसी तरीके से जो पालक वर्ग यहाँ उपस्थित हुआ है, आपका भी दायित्व बनता है। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। गणपति जी है सबके प्यारे, शिव गौरी के राज दुलारे, भोली और प्यारी सी सूरत, सवारी बने हैं उनके मूषक। प्रथम परम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी की वंदना या गणेश जी की स्तुति करना हमारी भारत की सांस्कृतिक परंपरा रही है। किसी भी प्रकार का आयोजन हो, गणेश वंदना से ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। मंगल मूर्ति मंगलमय वरदान दो, शुभ सदन शुभ हो शुभ गान दो। दहशतों की गर्द में सब जर्द है, अमन वाली हर सुबह हर शाम दो, अमन वाली हर सुबह हर शाम दो। चाहतों से कुछ कम मिले कुछ गम नहीं, हमनी वाला हर कदम इंसान दो, हमनी वाला हर कदम इंसान दो। हमारी भारतीय संस्कृति में हर कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री गणेश के आगमन के साथ ही होती है। तो आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम गणेश वंदना से ही करेंगे।
आप सभी की जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी हमारी आज की पहली परफॉर्मेंस को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए स्टैंडर्ड 5th के विद्यार्थियों के लिए। जोरदार तालियों के साथ गणपति बाप्पा का आगाज हो रहा है। सभी उनके दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Purpose event. Today we are going to witness the cutest and most entertaining dance performance. Are you all ready for this? Yes, that's right. Today we have a special treat for you. Our little stars from playgroup and nursery are all set to light up the stage with their adorable moves on छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे. These little bundles of joy work so hard to bring a dance performance full of fun, energy and of course lots of cuteness. So without any further delay, let's get ready to cheer for our little performers. Here they are with their beautiful dance on the stage on the song छोटे छोटे तमाशे. So let's give them a big round of आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स. Myself Samaira Gangwani welcomes you to this mesmerizing evening. Coming up next, we have a vibrant and lovely dance performance by our super talented kids.
They are here to celebrate the spirits of joy, friendship and celebrations. These little stars have been practicing tirelessly to bring up the magic of the song Naach Meri Jaan to live on stage and to bring smiles to your faces. This song is all about fun, friendship and celebration, and our young performers are ready to make you feel the rhythm. So without keeping you waiting, let us welcome them with a आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। जगाला तू संजीवनी देते, उग्र रूपा मागे सुद्धा वात्सल्य वाहते, तुझ्या कृपा दृष्टीचे मी दान मागते, गोंधळ मांडिते ग आई गोंधळ मांडिते। आई जगदंबेच्या नावानं धाव धाव। हाकेला धावून ये आई, भक्तांचा उद्धार कर, चरणी तुझा ठेवू माथा, दार उघड आई दार उघड। कौन सी होने वाली है जो बहुत ही शानदार होगी, जिसमें सभी छोटे छोटे बच्चे आपके सामने परफॉर्म करने वाले हैं। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता उसमें क्या होने वाला है और कैसे होगा, बताओ मुझे। थोड़ा रुक भी जाओ, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? बताती हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। नहीं नहीं, मुझे जानना ही है, 10 बोलने से पहले बताओ। चलो मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5। थोड़ा ध्यान से सुनो, वो होली के रंगों जैसी लाल गुलाबी नीले पीले पर रहते हमेशा संग है, कुछ खट्टी सी इमली जैसी, कुछ मीठी सी चाशनी जैसी है। So dear parents, our junior KG little champ performing एक ही। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। समय की कमी है, इसलिए हमने पोडियम ऊपर चढ़ाना और उतारने का काम कैंसिल किया है। क्विकली मैं अपना छोटा सा एड्रेस फिनिश करूंगा। बिफोर आई स्टार्ट, ऑनरेबल मैनेजमेंट मेंबर ऑफ गोंदिया होम्योपैथी एजुकेशन सोसाइटी प्रेसिडेंट श्री धीरज अग्रवाल जी, सेक्रेटरी श्री आशीष अग्रवाल जी एंड डायरेक्टर मैम रेशमा अग्रवाल जी, आए हुए सभी पेरेंट्स, बच्चे और उन बच्चों के पीछे मेहनत करती हुई टीचर्स, शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ, इन सभी के सहयोग से जो आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसका आनंद हम सब लोग भरपूर ले रहे हैं। मैं केवल 3 इम्पॉर्टेंट बट छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि मैंने 160 से ज़्यादा स्कूल ऑल अक्रॉस कंट्री और कुछ स्कूल विदेशों में भी किए हैं। तो एक जो कॉमन सी रिक्वायरमेंट पूरे देश के स्कूलों में जब भी हम लोग पालकों से बात करते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, वो आती है। कुछ शिकायतें होती हैं पेरेंट्स की, वो कहते हैं कि टीचर्स की जिम्मेदारी है बच्चों को संभालना, हमने स्कूल को हैंड ओवर किया है। टीचर्स कहते हैं बच्चे तो मेरे पास केवल 5 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए रहते हैं, बाकी के 18 घंटे वो घर में बिताते हैं, तो पालकों की भी उतनी जिम्मेदारी है। तो ये हो गया एक टेबल टेनिस का मैच, उधर से पेरेंट ने इधर पास किया, टीचर ने पेरेंट की तरफ पास किया, बच्चा पिंग पोंग बॉल बन के रह जाता है। कहने की बात मतलब ये है कि जब भी हमको बच्चों में कोई संस्कार डालने हैं, स्कूल तो अपनी तरफ से सब्जेक्ट्स की एजुकेशन के साथ साथ दूसरी वैल्यूज़ देने की कोशिश कर रहा है, बट वैल्यूज़ जो है वो घर से शुरू होती है।
अभी चीफ गेस्ट श्री डॉक्टर आनंद देशपांडे जी ने कहा था, कुछ मोबाइल से रिलेटेड उन्होंने बात कही थी, मोबाइल टेक्नोलॉजी। आप इस मोबाइल की इम्पोर्टेंस को नहीं जानते, इससे मेरा ज्ञान बढ़ता है। आपको क्या मालूम गूगल क्या होता है? हम लोग गूगल में एक क्वेरी डालें, उसके 10 जवाब आते हैं। ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट ना हो, ये ज़रूरी है। ये थी पहली बात। तो नियम ये बनाया जाए कि घर में सब लोग नो मोबाइल आवर पे फोकस करें, या तो शाम को 2 घंटा नो मोबाइल रहे सबके लिए। नो मोबाइल का मतलब है बिल्कुल साइलेंट मोड में एक जगह सब रख दें और दूसरी जगह सब बैठ के जो भी एक्टिविटी आपको करनी है, खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, बट मोबाइल से दूर रहना है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, बच्चों में स्ट्रेस। मैंने बहुत सारे रेजिडेंशियल स्कूल्स के साथ काम किया है। कई रेजिडेंशियल स्कूल में रिसेंटली रायगढ़ के एक स्कूल में बच्ची ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसने सुसाइड कर लिया। एक्चुअली स्ट्रेस बच्चों में बहुत आ रहा है। कारण ये है कि हम लोग उनको बहुत ज़्यादा केयरिंग के साथ पालते हैं और हर समय उनसे ये कहते हैं आपने जीतना है, आपने जीतना है, आपने जीतना है। बहुत कम पेरेंट ऐसे होंगे जब वो बच्चों के साथ बचपन में खेलते थे, खेलते समय वो उनके साथ हर बार उनके सामने हारते थे ताकि बच्चा खुश हो जाए। बच्चा खुश होकर ताली बजाता है, मैंने पापा को हरा दिया, मैंने मम्मी को हरा दिया। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी करना है कि बीच बीच में आप बच्चों को हराएं, हार को स्वीकार करना सीखें, हार को एक्सेप्ट करना सीखें और उसके बाद दोबारा जोश से लड़ना सीखें और दोबारा जोश से आगे बढ़कर काम करना सीखें। ये बहुत ज़रूरी 2 चीज़ें हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ जिसके बाद मैं शब्दों को विराम दूंगा, वो है मोरल एंड सोशल वैल्यू। आज दिन में हम लोग 1 बजे से लेके 5 बजे तक गोंदिया के एक प्रोग्राम में थे जहां PW क्लासेस का आज लॉन्च हुआ है। फिजिक्स वाला जो जी और नीट की कोचिंग क्लासेस यहाँ ऑफर कर रहे हैं गोंदिया में, तो फिजिक्स वाला की टीम आई हुई थी। वहाँ एक फैकल्टी ने एक बात कही, कोई एक बच्चा था अभिषेक, जिसके पास पैसे नहीं थे कोचिंग लेने के। उसने समहाउ लोगों की मदद से चंदा करके कोचिंग की फैसिलिटी ली। आउट ऑफ 720 ही सिक्योर्ड 695 और उसने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया और डॉक्टर बन के निकला गवर्नमेंट कॉलेज से। I am Cheshta Agrawal And I am Diya Ramchandani. We are delighted To welcome you all to this divine evening of devotion. आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो भक्ति और शक्ति दोनों का संगम है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का दर्शन। ये सिर्फ एक प्रस्तुति ही नहीं बल्कि एक यात्रा है। भगवान विष्णु के 10 अवतार की एक कहानी है। चेष्टा, तुम्हें पता है ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें भगवान विष्णु के 10 अवतार के रहस्य और महिमा से रूबरू करवाएगी। जी हाँ, भगवान विष्णु के 10 अवतार की ये कहानी सत्य के जीत और अधर्म के विनाश की है। यहाँ हर अवतार एक अलग पाठ सिखाता है, एक अलग संदेश देता है। बिल्कुल सही कहा और इसी संदेश को आज के परफॉर्मर्स अपने नृत्य के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाएंगे। हर कदम एक कहानी, हर भाव एक संदेश। So Diya, should we take our audience to this divine journey now? बिल्कुल, और इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं ग्रेड 10th की टैलेंटेड गर्ल्स। So let's welcome them with a big round of applause. Presenting to you grade 10th girls with their mesmerizing performance. जय श्री विष्णु। पुराणों के अनुसार जब जब पाप और अधर्म का प्रकोप छाया है, तब तब मानवता की रक्षा के लिए धरती पर श्री विष्णु भगवान का अवतार आया। संसार को जल प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया।
समुद्र मंथन के दौरान कूर्म अवतार लिया। पृथ्वी को समुद्र में डूबने से बचाने के लिए वराह अवतार लिया। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। सीमा टूटेगी, जब सृष्टि इंसानों के अत्याचार से रुकेगी, तब कलयुग का अंत करने प्रकट होंगे भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। त्रिकुटा के तप ने एक किया तीनों ही आयाम। दर्शन देने आए भगवान विष्णु बन के प्रभु श्री राम। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आज से संसार आपको पुकारेगा वैष्णवी। वैष्णवी, सीता मेरी धर्मपत्नी है। मैं किसी और को नहीं अपना सकता। और पृथ्वी लोक पर आपका काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ये हमारे मिलन का सही समय नहीं है। उत्तर दिशा की पर्वतमाला पर जाकर कलयुग के आगमन तक तपस्या करें, तब मैं लौटूंगा और हमारा मिलन होगा।
वैष्णवी का तेज पूरे पृथ्वी लोक पर छाया, जिसका कारण जानने गोरखनाथ का शिष्य भैरवनाथ वहां पर आया। उनके तप के तेज त्याग से हुआ बड़ा वो अचंभे, किंतु वैष्णवी की सुंदरता पर भैरवनाथ हो गया मोहित। दूर रहो भैरव मुझसे, मैं नहीं तुम्हारा भाग्य। एकमात्र प्रभु विष्णु है मेरे प्रेम, मेरे आराध्य। वैष्णवी गई पर्वत की गुफा में, लेकिन माना ना मूंद, इसलिए उसे मृत्यु दंड देने वैष्णवी ने लिया महाकाली का रूप। देख महाकाली को भैरवनाथ लज्जा से भरा आया। क्षमा मांगते हुए बहुत रोया, बहुत पछताया। क्षमा करती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारा मंदिर भी यहाँ बनेगा। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरा दर्शन भी पूर्ण न होगा। गुफा में लौटकर वैष्णवी ने 3 सिरों के साथ पिंडियों का रूप लिया। अपने आराध्य भगवान को पाने के लिए कलयुग के इंतजार में वैष्णवी ने फिर से तप किया। पवित्र गुफा माता वैष्णो देवी का दरबार कहलाता है, जहां लाखों श्रद्धालु माथा टेकने जाते हैं जब माता का बुलावा आता है। किसान की जीवन यात्रा बहुत ही कठिन होती है। वे सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं। उनके पास उनके परिवार के लिए समय भी नहीं होता, फिर भी वे कभी भी घबराते नहीं है। किसान का महत्व इस देश के लिए बहुत ही अधिक है। वे अपनी मेहनत से देश को खुशहाल करते हैं और सभी का पेट भरते हैं। किसान के बिना इस देश का विकास अधूरा है। इस पर हम कुछ पंक्तियां कहना चाहते हैं। चीर के जमीन कोई उम्मीद बोता है, ये किसान ऐसा चैन से कहाँ सोता है। यूं ही नहीं मिल जाता है दुकानों में आटा। किसान ने तपती धूप में गेहूं था काटा। छठ टपकती है उसके कच्चे मकानों की, फिर भी बारिश हो जाए तमन्ना है किसान की। विश्वास करना सीखना है तो किसान से सीखो। उम्मीद रखना सीखना है तो किसान से सीखो। धैर्य रखना सीखना है तो किसान से सीखो। दूसरों के लिए जीना सीखना है तो किसान से सीखो। So everyone put your hands together and welcome to the students of the grade 2nd tribute to farmer. जल है तो कल है। पृथ्वी के 5 तत्व है, जल, आकाश, हवा, अग्नि और जमीन। पृथ्वी के इन्हीं 5 तत्वों में से जल का बहुत महत्व है। इस साल की तरह पिछले साल बारिश हुई थी, लेकिन कम। इस साल अब तक बारिश नहीं हुई। इसी तरह जल का महत्व समझाने के लिए सेकंड ए के बच्चे नृत्य पेश कर रहे हैं। आइए तो देखते हैं इन प्यारे बच्चों का नृत्य। हमको डटर रही है खेत प्यासे, दाना फूटे भी तो कैसे फूटे। हे पालनहारे, इस समस्या को सुलझाए तो सुलझाए कैसे। यदि हम आज नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। हम आज प्रण लेते हैं कि हम आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज से प्रयोजन शुरू करें। आओ जल का संग्रह करें।